till now, since last 21-22 years, I have exhibited in almost 75 solo and group shows. I have done 6 to 7 art camps within India. Most of my paintings are in India as well as few European countries, including France. I have exhibited my works in France, Sweden, Maldives, and many parts of India like Delhi, Chennai, Bangalore, Mumbai, etc. And this has been a great experience with my art collectors spread all over the world. My works can be seen in Mumbai Apollo Hospital also. It's into permanent collection with Hotel Vilaza. My metal works are in Hotel Vilaza with a big farm of sunflowers. Also a metal tree in steel, brass and copper is in New Delhi, Aman Hotel. 2-3 works are in Maldives with the enameled bowls and aluminium brass mural it is, like the corals, interesting it is. And of course paintings is the most spread artworks of mine. I hope keep creating till the end. Art has been a slow addiction in my life. I pursued art as a passion, but all these 25 years with being academic and professional artist, I have been learning that it has become my life now. I just cannot stay without it. Still, I believe art is not lucky for everyone as it is for me. My parents raised me like a strong child, making me stronger day by day with my mind. They used to tell me, whatever I learned in my life, give it the fullest as a student and always be a student for the next few years. Don't go and just get paid for things, and the result will be definitely fruitful. I was a merit student in the government diploma in art, in fine art, and also in diploma in art education. I joined an art institute as an assistant lecturer. I thought that will be the best thing to do. That will be a best profession in my life, as I love teaching, as my parents were in teaching. So I thought that's not a very difficult thing. But later I just could not continue this job, one job of teaching, and then I left it and remained working on my paintings. But because of that I could give more time for the painting process. And yes, I love as I love the teaching, I just miss it now. Luckily people started appreciating my works from the first show itself. Initially I wanted to start something in the Indian handicrafts and this production, but within less time I was busy in the paintings. I kept painting for years. I made less friends and I could not meet them. The life became boring then. Spending much of the time in my studios, one day I planned to learn something more. I joined the metal repository enameling, and that was a course. I did the basic, then advanced in Mumbai itself. I love to watch the carpenter shops, the garages, the repairing shops, and it attracted me. The jewelry does not attract me much as
these tools attract me. Then I set up my own metal studio. So I do my enameling there. This enamel process is very interesting, and it is more of addiction. It makes me addictive. It's like we need to just use the powdered glass, fuse it on the metal with the help of a furnace, firing it at a high temperature of around 700 and 800 degrees Celsius. A bit complicated process, but the result is superb. Here the cells are less too, but that's a great satisfaction for me when I see that complete piece, because we make history now. It's not easy to create something which is different from the entire world. Normally I say painting is my passion, metals and enamels is my addiction. My husband is my first friend. He too is an artist and thus understands and supports me a lot. He knows what I need when and how an artist should live, or I am not a family person. I like to be alone. I like to work alone. I just love to wander the world, and he knows this. The subjects in my artworks are not complicated, as I believe that art is a whole mode of entertainment. I believe in selling happiness. If the artist is happy, his art collector spaces definitely becomes happy. Art has the ability to create positive spaces. Okay, मी दिसते ना? Yeah, you're looking really beautiful, Bhavana. आई. No, खरोखर तुम्ही खूप छान असं म्हणजे चाइल्ड लाईक वाटते, चाइल्ड लाईक क्यूटनेस आहे तुमच्यात ऍक्च्युली. Okay, thank you. ओके, सो आई थिंक फॉर पार्ट 1 एक्चुअली हमने एक क्वेश्चन पर स्टॉप किया था जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था फ्रॉम वन ऑफ माय ऑडियंस. एंड बाय द वे ये जो पर्टिकुलर ऑडियंस है ना, ये जनरली आज तक मेरे जितने भी पॉडकास्ट हुए, कहीं ना कहीं उनका ये क्वेश्चन हमेशा सिमिलर रहा और वो समहाउ कनेक्ट भी हो गया उन टॉपिक्स से. तो आज के भी हमारे इस टॉपिक से उनका ये क्वेश्चन रिलेटेड है, जो कि है लाइक आस्किंग अ रिलेशन अबाउट वास्तु कंप्लायंस या तो वास्तु शास्त्र एंड आर्ट के बारे में. तो जैसे कि बहुत सारे आर्ट फॉर्म्स है जो काफी पॉपुलर है, जैसे कि राधा कृष्ण की जोड़ी हो गई, या माँ लक्ष्मी का फोटो हो गया, या वाइट हॉर्सेस रनिंग टुगेदर, या यू नो वाटरफॉल हो गया, या कोई एक वुमन चर्निंग सन एंड थिंग्स लाइक दैट. तो माना जाता है कि ये जो पेंटिंग्स है, ये जो एक आर्ट फॉर्म्स है, अगर घर में रखा जाए तो दे ब्रिंग सक्सेस, prosperity, money. And in fact one of my known friends, उससे तो पर्सनल एक्सपीरियंस भी रहा जब उसने अपने घर में वाइट हॉर्सेस की फोटो रखी. एंड शी सेड कि लाइक विद इन अ ईयर बोथ शी एंड हर हस्बैंड दोनों ही अपने काम में सेटल हो गए, एंड नाउ दे आर लाइक फाइनेंशियली क्वाइट स्टेबल. सो इसके ऊपर आपका क्या कहना है? लाइक जब भी आप कोई आर्ट बनाते हो, डू यू थिंक अबाउट वास्तु साइंस एज सच, या यू या एनीथिंग दैट यू वांट टू स्पीक ऑन दीज टू एस्पेक्ट्स? This subject is very nice, interesting. Vastu Shastra is a different subject. Art is a different subject. दोनों का अगर कंबाइन किया जाए तो ऑफ कोर्स इसमें कुछ अच्छी बात है. वास्तु शास्त्र ये जैसे ज्योतिष वगैरह शास्त्र है, इस टाइप का एक अलग सा शास्त्र है. तो
जैसे हम अगर भगवान में अगर हम विश्वास रखते हैं तो कोइंसिडेंटली कुछ चीजें होती जाती है पॉजिटिव, तो हम यस, सोचते हैं बैंक हाँ ऑन उस वजह से टारगेट, हुई, पूजा बैंक की ऑन वजह से टारगेट हुई। बाहर होना, हाँ, करेक्ट। तो इट डिपेंड्स। मैं मानती हूँ कि एक एनर्जी है या दो चार टाइप्स की अलग अलग एनर्जीज है। एक एनर्जी हमारे दिल में जो है पॉजिटिविटी होती है, श्रद्धा होती है, वो एक एनर्जी है। भगवान हो नहीं हो, इट डिपेंड्स ऑन एवरी पर्सन टू पर्सन। मैं मानती हूँ कि भगवान है, तो मैं बहुत मानती नहीं हूँ, लेकिन कुछ हद तक मानती हूँ कि हाँ ऐसी शक्ति है, और मैं अपने खुद की पॉजिटिविटी को भी मानती हूँ। तो वास्तुशास्त्र भी इस पे भी चलता है, वास्तुशास्त्र। एंड उसमें दिशा के हिसाब से कुछ अलग अलग रोल्स दिए हैं, हर एक डायरेक्शन को ऐसे माना जाता है। वो हर एक डायरेक्शन के लिए एक भगवान है ऐसे माना जाता है, या हर एक डायरेक्शन के लिए एक एनिमल भी है, एक नेचर है उस डायरेक्शन का। जैसे ईस्ट का नेचर है हॉटनेस, लेकिन उसके साथ चिड़चिड़ापन, ये भी एक टाइप का स्वभाव हो गया उस इंसान का। तो ये सारी चीजें कंबाइंड है। जैसे वी आर मेड ऑफ 5 एलिमेंट्स, आकाश, तप, अर्थ, विंड, स्काई, स्पेस एंड वाटर, ऐसे वो 5 पंच महाभूत जैसे हैं। तो ये सारी चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई है। और वास्तुशास्त्र में पेंटिंग का यूज किया जाता है, और बहुतों को अच्छे उसके रिजल्ट्स भी काफी अच्छे आए हुए हैं। मेरा बहुत डीप नॉलेज नहीं है उसमें, मेरे हस्बैंड कुछ हद तक उनकी कंसल्टेंसी भी है वास्तु की। वो आर्टिस्ट तो है ही, लेकिन उसके साथ उन्होंने कुछ सालों से वो एज ए वास्तु तज्ञ भी थोड़ा बहुत काम कर रहे हैं, और उनको उसमें अच्छा एक्सपीरियंस है, अच्छा नॉलेज है। उनसे थोड़ी बहुत सुनने को मिलता है मुझे। तो ये हॉर्सेस है, या कभी कभी वाटरफॉल भी होता है कि वाटरफॉल आके हो या नॉर्थ हो वगैरह, साउथ साइड में वाटर नहीं होता। तो ये सारी चीजें, ये बहुत वास्ट सब्जेक्ट है, और कुछ हद तक इससे बहुत अच्छे अच्छे रिजल्ट्स आए हुए हैं। मैंने बहुत पेंटिंग इस पे नहीं किया है, मैं पॉजिटिविटी ऑफ माइंड ये एक थीम पे बहुत काम करती हूँ। और लेकिन मेरे हस्बैंड के कहने से मैंने मेरे स्टूडियो में या मेरे घर में उस डायरेक्शंस में वो स्पेसिफिक चीजें लगाई है, रखी है। जैसे साउथ साइड में उनका कहना है कि हेवीनेस चाहिए, पानी नहीं चाहिए, तो वहां पे ट्री का पेंटिंग हो गया, या बिल्डिंग्स रख सकती हो। अभी हमने कुछ दिनों पहले लॉकडाउन में ही कुछ काम किया, एक वाटरफॉल बनाया, घर में ही वाटरफॉल बनाया हमने। तो वो हमने नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में ले लिया। तो इट डिपेंड्स ऑन आप किस पे विश्वास रखना, आपकी श्रद्धा क्या है मोस्टली। इट्स अ वास्ट सब्जेक्ट। और वास्तु का और पेंटिंग का आगे जाके बहुत अच्छा एक नया बिजनेस भी रन कर सकते हैं, बहुत से आर्टिस्ट भी रन कर सकते हैं एज ए बिजनेस। जो मैंने डिप्लोमा जो किया है या डिग्री जो है फाइन आर्ट की, ये सब चीजों में काम आती है। आगे जाके अगर आपको फैशन डिजाइनर बनना है तो भी उसमें आप में वो इनकलकेट हो जाते हैं। तो अपने आर्टिस्टिक व्यूज, या इंटीरियर में जाना है, आर्किटेक्चर एक अलग सब्जेक्ट है। लेकिन फाइन आर्ट के 1-2 साल अगर स्टडी किए जाए ना, तो उसका यूज कहीं ना कहीं वो हो रहा है, लोगों को फोटोग्राफी में यूज हो रहा है। मैं बहुत लोग ऐसे भी बोलते हैं, भावना तू अच्छा फोटोग्राफ्स भी निकालती है, तू तेरे अच्छे क्लिक्स होते हैं। तो वहां पे मेरा फाइन आर्ट का भी थोड़ा सा अभ्यास की वजह से मुझे मैं अच्छे कंपोज कर पाती हूँ चीजें। कभी कभी कलर्स अट्रैक्ट करते, तो वो अट्रैक्शन तक ठीक है, लेकिन वो कैमरे में उतारना भी आना चाहिए।
तो वो सब इसमें से आ जाता है। दिस इज क्वाइट एन इंटरेस्टिंग थिंग दैट यू हैव टोल्ड अबाउट। एंड क्या पता, मतलब हो भी सकता है कि शायद अपने नेक्स्ट पॉडकास्ट में ये जो वास्तु साइंस एंड आर्ट है, मे बी शायद इसमें और किसी डेप्थ में मैं जा सकूं। लेट्स सी, मतलब दिस इज अनदर स्टोरी फॉर अनदर डे। सो हैविंग सेड दैट, अभी तक के हमारे जितने भी क्वेश्चंस थे, ये ऑडियंस के जो क्वेश्चंस थे, ये सारे जानना चाहते थे आपके बारे में, आपके व्यूज, आपके थॉट्स के बारे में, अ पीक इनटू योर लाइफ। अभी जो मैं क्वेश्चंस आपको जो पूछने जा रही हूँ, दे आर काइंड ऑफ अ करियर गाइडेंस या तो प्रोफेशनल गाइडेंस दे सकते हैं किसी को। सो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट क्वेश्चन भावना, सो बेसिकली एक ऑडियंस का ऐसा क्वेश्चन आया है कि लाइक अगर समझो बिगिनर लेवल कोई है पर्सन, ऐसे बी इट चाइल्ड और बी इट एन अडल्ट, तो वो अपनी इस चीज को, अपने आर्टिस्ट के इस हिडन टैलेंट को कैसे एक्सप्लोर कर सकते हैं, कैसे उभार सकते हैं? कोई बेसिक चीजों का ध्यान रखना जरूरी है, या कोई कोर्सेस कर ले, या कितनी फ्रीक्वेंसी में उसे प्रैक्टिस करना चाहिए? एनीथिंग, एनी काइंड ऑफ टूल्स, एनीथिंग दैट यू कैन सजेस्ट फॉर अ बिगिनर लेवल, बी चाइल्ड और एन अडल्ट? फॉर चिल्ड्रन आई कैन सजेस्ट कि उनके 4th 5th स्टैंडर्ड तक उनको इन रियलिटी क्लास की जरूरत नहीं है। आजकल 5 to 6 इयर्स के बच्चे हो गए तो पेरेंट्स बोलते हैं मेरे बच्चे को ड्राइंग में काफी इंटरेस्ट है तो क्लासेस लगाना चाहिए। एक्चुअली इतने छोटे बच्चों के लिए क्लास की जरूरत नहीं है। उनको सब्जेक्ट्स की भी जरूरत नहीं है कि कोई टीचर आके सब्जेक्ट दे या ड्राइंग कैसे करना है ये सिखाए। नो वे। ऐसे करना मतलब उन्हें उन्हें बिगाड़ना है, ऐसे हम आर्टिस्ट मानते हैं। मेजॉरिटी जो एस्टैब्लिश्ड आर्टिस्ट है उनका मानना यही है कि ड्राइंग घर से शुरू हो जाता है, बस उसको कलर्स लाके दो, उसको अपनी कुछ चीजें दो जिससे वो कुछ अलग अलग क्रिएटिव करता रहे। उनको, बच्चों को सीजर्स काफी पसंद होते हैं, पेपर्स पसंद होते हैं। अगर कलर्ड पेपर्स नहीं है तो न्यूज़पेपर में भी वो बहुत कुछ अच्छा अच्छा कर लेते हैं। सो बेसिकली बच्चों को शुरू में गाइडेंस देने की भी जरूरत नहीं है। बस हाँ ये अच्छा दिख रहा है, इतना भी अगर उनको बोला जाए तो उसमें से उनको उसी से इंस्पायर होके और 4 चीजें बना लेते हैं। तो उनकी शुरुआत ऐसी ही होनी चाहिए। एंड 3rd 4th स्टैंडर्ड के बाद थोड़ा सा अगर जरूरत लगे तो क्लासेस ज्वाइन कर लो, लेकिन मेजॉरिटी 5th स्टैंडर्ड वगैरह में थोड़ा सा उसे जो स्कूल के ग्रेड एग्जामिनेशंस होते हैं एलिमेंट्री और इंटरमीडिएट, उसके लिए प्रिपेयर कर सकते हैं बच्चे। ये बच्चों के बारे में। बड़ों के बारे में कहा जाए तो अगर आप आर्ट करना चाहते हैं तो मटेरियल बहुत लाने की जरूरत है नहीं। शुरू में थोड़ा सा मटेरियल लेके जस्ट ट्राई टू बी हैप्पी एंड स्टार्ट क्रिएटिंग व्हाटएवर यू वांट। बच्चे बन के आप जैसे बचपन में काम करते रहते थे वो थोड़ा सा मेमोराइज करके याद ला के आप उस सोच से अगर काम शुरू करें तो दैट्स इनफ। एक शांत अपने लिए एक स्पेस बना लो, अपने काम के लिए एक इंटरेस्टिंग स्पेस बना लो, छोटा सा कोना हो सकता है, और वहां पे शुरू कर दो। बहुत से अभी तो बहुत इजी हो गया है, इंटरनेट पे काफी सारे वीडियोस भी मिल जाते हैं, काफी सारी चीजें मिलती है, ड्राइंग्स नहीं, फोटोग्राफ्स काफी अवेलेबल होती है। अगर खुद के पास नहीं है तो उस पे से आप शुरू कर सकते हैं। अलग अलग आर्टिस्ट के काम आप देख के वो स्टडी कर सकते हैं उन्होंने क्या किया है, और वैसे शुरू कर सकते हैं। कोर्सेज भी अटेंड कर सकते हैं, लेकिन आप जिससे कोर्स ले रहे हैं उनका आप पोटेंशियल देखिए, वो किस लेवल तक गए हैं ये देखिए। आपके टीचर क्वालिफाइड आर्टिस्ट होने चाहिए ये देखिए, क्योंकि आजकल ऐसे हो रहा है कि जो एज ए हॉबी शुरू कर रहे हैं काम करना, वो साल भर में अपने क्लासेस खोल लेते हैं। इससे नुकसान दूसरे का हो जाता है, जो सीखना चाह रहे हैं उनका नुकसान होता है उसमें से। तो वो नहीं हो, ये आपकी खुद की जिम्मेदारी है वो। और कॉलेज के लिए 10th के बाद डिप्लोमास है। अगर कोई बच्चे करना चाहते हैं स्टडी तो जो ग्रांटेड कॉलेजेस है जैसे जेजे स्कूल ऑफ आर्ट वगैरह, तो वहाँ पे एज लिमिटेशंस है। तो
बड़ों के लिए वहाँ पे नहीं है इंस्टीट्यूट, लेकिन मेरे भी कुछ स्टूडेंट्स रह चुके हैं, और मेरे खुद के क्लासमेट्स भी कुछ ऐसे रह चुके हैं जिन्होंने शुरू में किसी और फील्ड में पढ़ाई की थी, जॉब कर रहे हैं, और फिर हमारे साथ एज ए स्टूडेंट आ गए कॉलेज में। ऐसे भी होते हैं, ऐसे स्टूडेंट्स है। अगर आपको टाइम हो, हफ्ते में अगर 4-5 दिन आप निकाल रहे हैं, जैसे हाउस वाइफ्स होती है वैसे भी आगे जाके ज्वाइन कर सकते हैं इंस्टीट्यूट। कुछ इंस्टीट्यूट्स में एज लिमिटेशंस है, लेकिन सारे इंस्टीट्यूट्स में नहीं है एज लिमिटेशंस। गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स है, प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स है, 1-2 साल के भी अच्छे अच्छे डिप्लोमास कोर्सेस है छोटे छोटे, तो वो आप देख सकते हैं। और डिप्लोमा करे या डिग्री करे, इसके जो फाउंडेशन नाम का जो कोर्स है वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। उसमें राइट फ्रॉम यूजिंग पेंसिल टिल पोस्टर कलर्स, वाटर कलर्स, पोस्टर कलर्स है, चारकोल्स है, इन सब पेन्स है अलग अलग, तो पेन्स, निप्स है, तो ये सारी चीजें कैसे यूज होती है, राइट फ्रॉम आर हैंड के जो प्रैक्टिसेस है, तो ये सारा उसमें फाउंडेशन कोर्स में आता है। उसमें जो ऑलमोस्ट आई थिंक 8-9 सब्जेक्ट्स है। कैलीग्राफी, ऑब्जेक्ट ड्राइंग्स, 2D डिजाइन, 3D डिजाइन, फिर मैन मेड ऑब्जेक्ट है, नेचर ऑब्जेक्ट है, कलर थियोरी है, हिस्ट्री ऑफ आर्ट है। ये फर्स्ट ईयर जो आर्ट का है इसमें ये आता है, डिप्लोमाज में और डिग्रीज के भी इसमें, दोनों में ज्यादा फर्क है नहीं। लेकिन आगे जाके आपको आगे की स्टडीज के लिए डिप्लोमा से डिग्री बेटर रहता है, लेकिन ब्रिज कोर्सेज भी है। अगर किसी ने डिप्लोमा किया हो तो 1-8 साल में ब्रिज कोर्स करके डिग्री में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, तो ये है। फिर शिफ्ट भी कर सकते हैं, शुरू में 1-2 साल फाइन आर्ट में लेके कंटिन्यू कोई और फील्ड ले ली, क्रिएटिव फील्ड, उसमें कंटिन्यू कर दिया। फाइन आर्ट और कमर्शियल आर्ट बेसिकली ये 2 सेक्शंस है, और कमर्शियल इज मोर अबाउट अप्लाइड आर्ट, इट्स मोर अबाउट एडवर्टाइजिंग। फाइन आर्ट इज मोर अबाउट अपना ही काम करो, अपनी सोच से काम करो, अपने स्टाइल में काम करो। तो ये दोनों बेसिक डिविजन्स है। इंफॉर्मेशन जो आपने अभी जो बताई, इट इज एक्चुअली क्वाइट एनरिचिंग एंड वैल्यू एडिंग इंफॉर्मेशन एक्चुअली। तो मेरे ख्याल से जो लोगों को, जिनको ये इंफॉर्मेशन जाननी थी, उनके लिए तो ये इंफॉर्मेशन मेरे हिसाब से तो काफी है, एंड दे कैन गो फर्दर एंड एक्सप्लोर मोर एवेन्यूज इन दैट। एंड इनफैक्ट आपसे बात, आई वुड से वांट टू से कि मेरे डैड है ना, ही वाज अ बायोलॉजी लेक्चरर, he has retired now, and when he was about to complete his start retirement, end के इसमें, तो he started thinking कि अरे मैं तो अभी रिटायर हो रहा हूँ, क्या करूँ। एंड नेक्स्ट रिटायर हो गए 2-3 मंथ्स में उन्होंने एक वर्कशॉप्स ज्वाइन कर ली सिरेमिक से रिलेटेड। अर्लियर व्हेन आई वाज स्मॉल ही यूज्ड टू पेंट, ही ऐसा ही जैसे थोड़ा सा कहीं पे देख लिया, या he used to do landscapes on nature also, sometimes on memory and sometimes on the spot। तो बहुत साल तक वो गैप रहा, वो कुछ किया नहीं था उन्होंने। and then after retirement he joined some workshops in ceramics with Sandeep Manchekar, and he was working with him. He used to go to Sandeep's studio, work there and then come back and all। एंड 1-2 साल में उनके इतने सारे बाउल्स एंड पॉट्स वगैरह हो गए थे, सो टिल नाउ अभी भी कहीं कहीं पे रखे हुए, कुछ है वो उनके स्टूडियो में ही है संदीप जी के। सो नाउ माय फादर ही समटाइम्स वर्क्स ऑन दिस आल्सो, बाउल्स एंड बाउल मेकिंग एंड ऑल। तो ये रिटायरमेंट के बाद भी मैं कहना चाहूंगी कि कोई तो ऐसी हॉबी हो, क्रिएटिविटी हो, जो आप याद रखे और आप शुरू करें। सो क्रिएटिविटी यू कैन कंटिन्यू आफ्टर योर रिटायरमेंट ऑल्सो, ये भी एक है पॉइंट। ये काफी इंस्पायरिंग चीज है भावना, बिकॉज मुझे भी ऐसा लगता है कि अगर लाइफ में इंसान के लाइफ में बेसिकली अगर गोल हो
तो वो इंसान बहुत दूर तक जाता है, भले गोल छोटे हो या बड़े हो, इट डजेंट मैटर, लेकिन गोल होना बहुत जरूरी है। एंड व्हाट यू सेड इज वेरी करेक्ट। एंड इनफैक्ट अभी एक एक बहुत फनी चीज हो गया मेरे जस्ट दिमाग में आई। जब मैं आपसे बात कर रही थी तो मेरा जो बेटा है ना, उसकी बहुत ही यूनिक सी स्टाइल है जो मुझे समझ नहीं आती। ही हैज दैट हैबिट कि जब भी मैं काम करूँ कि मेरे दरवाजे के नीचे से वो ऐसे यू नो कुछ पिक्चर्स This ड्राइंग is करके so भेजता है। cute. एंड ये He's missing you. He's missing you. Same is happening with my daughter. She's outside the room. Okay. और ये एक्चुअली उसके, और इनफैक्ट ये जो चीज है उसकी डेली हैबिट है जो मुझे काफी मतलब पता नहीं इंट्रिगिंग लगती है। अभी फॉर एग्जांपल अगर मैं रेसिपी लिख रही हूँ तो मैं लिखूंगी इन टेक्स्ट अनियन चाहिए, टमाटो चाहिए, वो कभी भी टेक्स्ट नहीं बनाता, वो हमेशा पिक्चर्स बनाता है। एंड आई रियली डू नॉट अंडरस्टैंड व्हाई। और उसका है जरा थोड़ा सा है ना आर्टिस्टिक दिमाग है, कुछ ना कुछ क्रिएट करता रहता है। आई डोंट स्टॉप हिम एनीवे, आई जस्ट टेल हिम कि अगर आर्ट और ये चीजें करनी है ना तो हाथ गंदे करना सीखना चाहिए करके। बट आई जस्ट वांटेड टू अंडरस्टैंड, जैसे जब आपने बताई ना तब मेरे दिमाग में क्लिक की कि शायद मैं आपको पूछ सकती हूँ कि ये चीज क्या सिग्निफाई करती बहुत है। इंटरेस्टिंग, मुझे बहुत अच्छी लगी ये चीज कि कहीं से वो चिट्स भेज दो मम्मी के लिए। मैं अभी 2 महीने पहले मैं गोवा गई थी एक आर्ट कैंप के लिए, तो जाते जाते मेरी बेटी ने भी ऐसे ही मुझे एक चिट फोल्ड करके दी थी। मुझे बोला ये जब तू जाएगी ना वहां पहुंचने के बाद ओपन करना। तो दैट वाज हाँ ये प्यार है, आई वुड से। वेरी क्यूट वे ये ऑफ सेइंग। होना चाहिए, ये होना चाहिए। We'll continue with our audience questions. So, भावना अभी कुछ लोगों को ये क्वेश्चन का है कि अगर से फॉर एग्जांपल अगर हॉबी है, आर्ट इज दियर हॉबी या दियर पैशन, तो अभी अगर उसे प्रोफेशन में अगर उन्हें कंटिन्यू करना है तो उसका आगे जाके उसका करियर प्रोस्पेक्ट्स क्या है, व्हाट आर द पोटेंशियल्स? वो एग्जीबिशंस कर सकते हैं। एग्जीबिशंस अगर करने हैं उनको सेपरेट, अपने एग्जीबिशन या किसी एग्जीबिशंस में उनको पार्टिसिपेट करना है या आर्ट गैलरीज में उनको अगर काम देना है तो शुरू से ही एक आदत लगा ले कि कॉपी वर्क करना नहीं है, या कॉपी जो फोटोग्राफ्स रेडी मिलते हैं ना उनमें से काम नहीं करना है। तो दैट शुड बी आवर ओन क्रिएटिविटी। जैसे एक्टर्स है, एक्टर्स के फोटोग्राफ इजीली मिल रहे हैं, उसे देख के हमने कोई स्केचेस बना लिए तो ये पोर्ट्रेट रेडी हो गया, तो ये नहीं चलता नॉर्मली। तो कुछ क्राइटेरियाज रखते हैं गैलरीज, तो ये ध्यान में रखना है। बहुत से आर्टिस्ट सेल्फ टॉट है जिन्होंने जो कॉपी नहीं सेल करते, ये बहुत अच्छी बात है और ये बहुत आगे भी जा चुके हैं, बहुत से अच्छे, मैं नाम नहीं लूंगी अभी, लेकिन आर्ट जो है ना वो अपने लाइफ से मिलती है। ये जो लाइफ सिखाती है, क्रिएटिविटी लाइफ सिखाती है, ये किसी इंस्टीट्यूट में सीखने से नहीं आता। इंस्टीट्यूट में सीखने से स्टाइल बनेगी, ये दिमाग में जो भरा रहता है वो कैसे अपने काम में उतारे, ये इंस्टीट्यूट सिखाएगा। लेकिन जो ऑलरेडी दिमाग में है ना वो इंस्टीट्यूट नहीं लाएगा, ये लाइफ लाता है। ओके, ये मुझे नहीं मालूम कि ये कहाँ तक है बराबर है, लेकिन मैंने बहुत से आर्टिस्ट को, अच्छे आर्टिस्ट मैंने ऐसे देखे हैं जिन्होंने लाइफ में बहुत स्ट्रगल किया है, या जो गरीबी से आए हुए हैं, जिनके पेरेंट्स ने काफी स्ट्रगल किया है, या लाइफ में उनके ऐसे कुछ ट्रेजेडीज हो गए हैं कि अलग है वो, या काफी ट्रेजेडीज के इसमें से आए हुए हैं, ऐसे लोग आगे जाके एज एन आर्टिस्ट बहुत अच्छे बनते हैं। सो ये मैंने देखा है। तो मुझे याद नहीं, मेरे फ्रेंड्स में या कलीग्स में भी मैं ये नहीं देखती कि ये पेरेंट्स की तरफ से भी काफी वेल सेट था और ये बहुत आर्टिस्ट बड़ा बन चुका है, ऐसे काफी कम है। तो स्ट्रगल है ना, स्ट्रगल सिखाता है। तो अगर एक कोई बिगिनर लेवल है या ऐसा कोई लाइक स्टूडेंट है जिसे करियर बनाना है, देन व्हाट इज द फाइनेंशियल फिगर दैट दे शुड कीप इन माइंड बिफोर प्रोसीडिंग फर्दर? नहीं, इस पे से एक प्योर जवाब ऐसा नहीं है। अगर अभी हम लोग गूगल ही करें, अगर नेट पर ही देखें
तो बहुत सी ऐसी चीजें बिक जाती है जो फ्रॉम वेस्ट बनाई हुई है, राइट? सो आर्ट, वी कैन मेक मनी फ्रॉम एनीथिंग, तो उसमें पैसा कितना डालना है इस पे भी इट डिपेंड्स कि क्या उस पे नहीं बात कर पाऊंगी मैं ठीक से। इट डिपेंड्स कि आपको उसमें कितना खर्चा करना है, वो दैट डिपेंड्स ऑन दैट स्पेसिफिक आर्टिस्ट, किस चीज पे करना है, मटेरियल क्या यूज करना है वगैरह। बिकॉज हियर आई एम टॉकिंग अबाउट वेरियस डिफरेंट थिंग्स, not only art on paper or canvas. So if you want as to explore as an artist, there are many ways which can be done, and internet makes this a lot easy. हाँ, आपको मार्केटिंग में थोड़ा सा करना पड़ेगा, एड्स वगैरह, वो एक है, वो हर एक के लिए है। राइट। सो भावना, जब भी आपको कोई आर्ट वर्क स्टार्ट करना होता है तो आप कैसे डिसाइड करते हो कि मैं अब इस आर्ट वर्क पर काम करूंगी? आप उसका प्रेप अप कैसे करते हो? एंड यू डू इट इन योर ओन स्टूडियो, राइट? Yes, I start my work in my own studio. I just be calm in front of that space, or canvas, whatever. I think on it. I sometimes do sketches, not always. Sometimes I just start with nice fantasy in my mind. ब्रेन ही सबसे ज्यादा होता है इसमें, दिल से ज्यादा ब्रेन होता है। और कभी कभी ऐसा होता है कि मेरा मूड ऐसा कुछ है, कुछ आज ऐड आती थी ना वो कोल्ड ड्रिंक की, आज कुछ तूफानी हो जाए, ऐसा भी हो जाता है। कभी कभी काम शुरू करती हूँ और वो तूफान अटक जाता है, 2 दिन के बाद मैं कुछ नहीं कर पाती उस तूफान का। ऐसे भी तूफान भी आ जाते हैं, कैनवास पे उतरते हैं, लेकिन आगे नहीं जाते वो तूफान। तो जिसमें मैं दिमाग लगाऊं वो काम मेरे ऐसे हो जाते हैं, काम कंप्लीट होते हैं। राइट। सो भावना, आपका लाइक जो वर्क लाइफ बैलेंस है, ये आप कैसे मेंटेन करते हो? हाउ डू यू स्ट्रक्चर योर डे और योर वीक? संडेज तो खाली रहती हूँ मैं, अभी लॉकडाउन में भी मैं संडेज खाली रहती हूँ, और बाकी वीकडेज पे आफ्टरनून में काम करती हूँ मैं मोस्टली। पहले जब स्टूडियो और होम एक साथ था तो आई वॉज एबल टू वर्क इन द मॉर्निंग, सुबह सुबह उठ के बिना ब्रश किए भी काम शुरू कर देती थी मैं। उस वक्त मैं ज्यादा टाइम दे पाती थी, अभी कम टाइम दे पाती हूँ। लेकिन नाउ आई वर्क लाइक अ ऑफिस टाइमिंग के, वहां पे गई तो एटलीस्ट 3-4 आवर्स मैं वहां पे रुक जाऊं, एंड इट एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन मी कि मुझे कितना टाइम देना है, आज मुझे टाइम देना है कि नहीं, वो काफी मेरा इस पे रहता है, मूड पे रहता है। लेकिन व्हेन आई स्टार्ट वर्किंग एटलीस्ट 2-3 आवर्स कंटिन्यूअस काम करूँ, ऐसी कोशिश रहती है मेरी कम से कम। Sometimes if I want to complete few things, I just go at night also after my food, work there for some time. And बाकी बच्चे हैं, बच्चों का स्कूल का अभी तो नहीं है, शुरू हो जाएगा ऑनलाइन क्लासेस वगैरह, तो ये थोड़ा सा मैनेज करना पड़ता है। जैसे बोलते थे ना, आर्टिस्ट है तो अपना अपना अलग लाइफ हो गया, ऐसा नहीं होता। और ऐसा भी नहीं है कि ऐसे भी बोलते हैं कि आर्टिस्ट ने शादी नहीं करनी चाहिए, ऐसा भी नहीं है एक्चुअली। सो शादी करो या बच्चे हो या कुछ भी हो, अपना काम काम है। यू जस्ट नीड टू टेक इट एज ए वर्क। ये यहाँ पे मेरा पैशन नहीं है, पैशन है लेकिन काम करने बैठूंगी तब पैशन है। लेकिन बाकी वक्त आई एम ए मदर, आई एम ए वाइफ, आई एम ए डॉटर इन लॉ, आई एम एवरीथिंग एंड आई एम एन आर्टिस्ट। तो वैसे हो जाता है। कभी कभी बच्चे भी आ जाते हैं स्टूडियो में, तो उनके लिए टाइम पास कुछ दे देते हैं। Absolutely. So, it's fine. It goes on. I'm satisfied कि I'm my own boss here, so I don't need bossing नहीं है। I can completely relate to it, भावना। So जब भी आपका समझो कि अपकमिंग अगर कोई एग्जीबिशन है तो उसकी तैयारी आप कैसे करते हो? नॉर्मली मैं प्राइवेट गैलरीज के साथ जाती हूँ, क्योंकि खुद एग्जीबिशंस क्रिएट करना, शोज करना, उनका कैटलॉग बनाना, फिर विजिटर्स है उनका ख्याल रखना, ये सब मुझसे नहीं हो पाता।
क्योंकि ये सब करते करते वी कैन नॉट डू एवरीथिंग। जैसे एक शेतकरी है, फार्मर है, तो फार्मर कैन नॉट खुद भी खाना, ये क्या बोलते हैं, खुद भी ग्रेन्स लगाएगा, वो ये बेचने के लिए शॉप में वही जाएगा एंड ऑल, सब वो नहीं कर सकता। ही जस्ट क्रिएट्स एवरीथिंग, फिर वो आके बाकी ले जाएंगे। सो आई जस्ट ट्राई टू बी क्रिएटर मोस्ट ऑफ द टाइम्स। ये फाइनेंशियल जो चीजें हैं उनमें ज्यादा नहीं पड़ती, आर्टिस्ट से वो होती भी नहीं है। जो हमारा जो दिमाग है ना वो काफी सेंसिटिव होता है, वो कैलकुलेटिव होता नहीं है। मेजोरिटी अगर आप आर्टिस्ट को मिलोगे, उनका मैथ्स कच्चा होता है, मैथ्स में बहुत बेकार होता है मैथ्स उनका। सो आई एम वन ऑफ देम। सो आई एम ग्लैड भावना कि आपने एक्चुअली ये बात कही। एक जो ऑडियंस का क्वेश्चन है नेक्स्ट, ये इसी के रिलेटेड है। तो अब जैसे कि आपने पार्ट 1 की हमारे जो पॉडकास्ट है उसमें कहा था दैट आर्ट इज एक्चुअली एन इन्वेस्टमेंट। सो व्हाट इज द रोल ऑफ आर्ट फंडिंग इनटू इट, या तो फिर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कहो या उसकी मार्केटिंग कहो, इसका रोल क्या होते हैं इसमें एक आर्ट वर्क को प्रमोट करने के लिए खास तौर से? हाँ, सोशल मीडिया में अच्छा वर्क सब तक पहुंचता है, सब तक अपना काम पहुंचता है। और आर्ट फंडिंग मतलब इट्स पुटिंग मनी, आवर मनी इनटू आर्ट, इट्स एन इन्वेस्टमेंट। दिस इज द बिजनेस, हाँ, दिस इज ए डिफरेंट मार्केट आई कैन से, एंड आई एम नॉट डायरेक्टली कनेक्टेड टू इट। लेकिन अगर इन्वेस्ट करना है आर्ट में, तो ओरिजिनल आर्ट में इन्वेस्ट करो, उसमें पैसा है आगे जाके। नॉट लाइक गोल्ड और प्रॉपर्टी की तरह जल्दी जल्दी इसमें बढ़ता नहीं है ये, लेकिन कुछ सालों के बाद ओरिजिनल आर्ट की और एस्टैब्लिश्ड आर्टिस्ट के प्राइसेस बढ़ जाते हैं। सो मे बी अच्छे आर्ट में या इम्पोर्टेंट आर्टिस्ट में अगर आप इन्वेस्ट करें, तो आगे जाके आपको इसका फायदा होगा। एंड ऑफ कोर्स सेटिस्फैक्शन तो है ही। जैसे गोल्ड है जो हम यूज डाल के पहन नहीं सकते, लेकिन आर्ट ऐसा है जो हमें खुशी भी दे रहा है अपने घर में या अपने ऑफिसेस में। और आगे जाके दिस कैन बी एन इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए ये काफी इंटरेस्टिंग है। बड़े नहीं तो छोटे छोटे आप ऑन पेपर, ऑन स्मॉल कैनवसेस, वैसे आप खरीद सकते हैं। बट गो फॉर ओरिजिनल आर्टिस्ट, नॉट कॉपी। राइट। सो अगर भावना आर्ट अगर एक इन्वेस्टमेंट है, तो आपका आर्ट आप उसे प्रोटेक्ट करने के लिए क्या करते हो? बिकॉज बेसिकली इट इज योर प्रॉपर्टी। तो आप आपके आर्ट वर्क को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या करते हो? I put very little images on the social media, direct images. I just try to put unclear images. I don't put those images directly सामने से. I just click on some angles that artworks. I just keep them, my original works, in the safer place. I deal with good people. जैसे एक्सपीरियंस से पता चल जाता है कि सामने वाले को अपने आर्ट में इंटरेस्ट है कि नहीं है, कि जैसे ऐसे ही पूछ रहा है, तो वो धीरे धीरे एक्सपीरियंस से आ जाता है समझ में। सो वी जस्ट अंडरस्टैंड लेटर के उसको अपनी आर्ट दिखानी है कि नहीं। ये भी धीरे धीरे, ये इसमें भी फ्रॉड होता है, आर्ट में काफी सारे फ्रॉड होते हैं, लेकिन एक्सपीरियंस से आता है, सीखने, हमें भी सीखने मिलता है। और प्रोटेक्शन और क्या कर सकते हैं, यही होता है, यही प्रोटेक्शन एक है। एंड इंटरनेट पे कितना भी आर्ट देखे, ओरिजिनल आर्ट का फीलिंग और फोटोग्राफ वाला दोनों अलग अलग है। गैलरीज में जाके अगर काम आप देख पाए तो ये फीलिंग अच्छी होती है। एक्स्ट्रा our eyes show us different, our eyes show the essence of it, of that art, not only that composition. The digital media shows us the compositions, they show us the overall color scheme, they show us the subject, but the original art shows us the essence of that particular creativity. Right, Bhavna. So Bhavna, what is your dream project? ये ऐसा कोई प्रोजेक्ट है जिस पर आप काम करना चाहते हो?
it's in parts. I want to do something in nature only. In I would say I want to create something like a jungle. I want to create Okay. in maybe metal or something, a part of the jungle. So that can be interesting. ये सुनकर ही काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है. So when do you plan to complete it? आपने कुछ ऐसे सोच कर रखा है, maybe 1 year, 2 No, years? I don't know. No, I don't know. I don't know if it will be complete or not. And maybe ये but मैंने कुछ मेरे स्कल्पचर्स किए हैं रिलीफ पे. वो ऐसी एक फार्म था, एक हमने फार्म बनाया था एक होटल के लिए, और वो सनफ्लावर फार्म था. ऑलमोस्ट उसमें लाइफ साइज 7 to 8 फीट के सनफ्लावर्स हमने 100 से ऊपर सनफ्लावर्स थे वो एक साथ लगाए हुए. तो इस टाइप का अगर कुछ क्रिएट करते जाए ना, सो दैट टुक ऑलमोस्ट lakhs and lakhs of rupees to complete it. So that was in lots of heavy project. Then one is in Aman Hotel. This was in Vilasa Hotel in Tamil Nadu. तो उसमें brass के वो sunflowers है. I think I have sent photograph also. One is in Aman Hotel, Lodhi, Delhi, and there it's flat tree of life. I think 15 or 16 feet height में है वो. So ऐसे है कुछ किए हुए. So I would like to keep on making such things. So अगर कोई ऐसे proposals पे होता है, सामने से अगर proposals आए तो हो जाता है. एक अकेला आर्टिस्ट इतना सारा फाइनेंशियली आई डोंट नो कितना कर पाएगा. और काम भी आता रहता है ना, अगर अपने लिए खुद के लिए काम करते रहो तो बाकी लोगों का काम करेंगे. हमारे अगर इंटीरियर आप देखे ना, आर्टिस्ट के इंटीरियर ये देखे आप, घर देखे ना तो घर सिंपल होते हैं. हमारे ऐसे बहुत हाई फंड होते नहीं है. सो इट्स लाइक जहाँ पे we are into that same thing, no? So we don't go according to very it's artistic, creative. Right. लगता है अलग, लेकिन वो looks अलग होते हैं. So भावना, जब आपके पास ऐसा कोई प्रपोजल आता है, मे बी फ्रॉम अ गैलरी और फ्रॉम अ क्यूरेटर, आप कैसे डिसाइड करते हो कि इस प्रोजेक्ट के लिए यू कैन गो अहेड एंड डू इट? If everything goes okay, fine, I do it. Okay. In terms of amount, in terms of budget, if profit, the time and the profit of it, then I do it. And I have my husband also sometimes helping for me for these manly things. So the technical part is also to be done with the help of workers. We need workers also to work on these big projects. वो सब manage करना पड़ता है. So it's on the theme के on that line के घोड़ा अगर घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या? Correct. At the end I need to get some profit out of it. Absolutely. इस बात में मैं टोटल अग्री करती हूँ. Because there are people वो आके बोलते हैं आइडियाज तो बहुत होते हैं, but they don't want to spend. पैसे भी होते हैं, but they don't want to spend. I know one builder, वो बिल्डिंग बांधने वाला builder. I was clicking my paintings का photographs. बड़े बड़े 6 फीट के पेंटिंग्स थे, 7-8 पेंटिंग्स थे, वो रखे थे and we were just clicking it. वो आके as a friend मुझको बोला उसने, see भावना, भावना मैडम, if you have any complimentary paintings in this, please give it to me. मजाक में बोल के गया. I don't go and ask him कि तेरे पास कोई complimentary flat रहेगा तो मेरे लिए रख दे, मैं 25 पेंटिंग्स भेज देती हूँ. I did not say that, लेकिन होता है वो. I don't know should I say it here or no, but है that's the reality. That's absolutely fine. ये मेरे ख्याल से ये सभी के साथ होता है. The only thing is like कि आपने बहुत ही correct way में उसे express किया. So yes, I agree to what you are saying. So next time, yes, but I'm going to ask him next time कि सर आपके पास कोई फ्लैट हो तो बता दो, मैं 25-30 पेंटिंग्स आपको दे देती हूँ. And then वो मेलोडी चॉकलेट 1-1 रुपए का दे देते हैं ना,
वैसा। ऑलराइट। सो भावना, ये थे हमारे सारे क्वेश्चंस अभी तक विथ रिगार्ड्स टू करियर गाइडेंस, या जिससे किसी भी प्रोफेशनल फील्ड में अगर कोई क्वेश्चंस हो तो अभी जो मैं नेक्स्ट आपको पूछने वाली हूँ वो काइंड ऑफ अ फन टास्क है, एक ऑन द स्पॉट टास्क है। सो आर यू रेडी फॉर इट? ओके। ओके, सो मैं चाहती हूँ कि आप 2 मिनट के लिए आपके आईज क्लोज कीजिए। Okay, so now what you have to do is you have to visualize, आपको कुछ imagine करना है आपके mind में, and then once you have done with that, open your eyes, describe it, और आपने क्या देखा, क्यों देखा, what do you think about it? Okay, I saw a few buildings. I got some 2-3 images of my earlier paintings. So there were buildings, there was water down, and on that above, because we were just talking about the fantasy, I saw a small girl, my own painting wali girl, and she's flying above near the skies. That. So why do you think, आपको ऐसा क्यों लगता है कि आपको यही इमेज नजर आई? Why do you think? That's many times I just imagine that. Maybe that's my childhood memory, childhood image I had created of myself. And as you say, my smile is nice and all. People say it. I don't know what is it, but maybe वो ऐसे दिल से निकलता है, इसलिए I'm this way. Maybe ये भी बोल सकते हैं कि probably this is a characteristic of an artist, क्योंकि एक आर्टिस्ट होता है उसका माइंड कंटिन्यूसली फ्लो होता रहता है, so probably just एक वेग गेस कर रही हूँ कि probably even this might be one of the reason. Yes. Okay, so मेरा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी कुछ ऐसा सिमिलर है। तो बेसिकली अगर जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी जैसे कि हमने पार्ट 1 में बात की थी कि जो आर्ट होता है वो एक काफी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी करंट सोसाइटी में, कोई सोशल इश्यूज हो या पॉलिटिकल इश्यूज हो। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि हमारा जो करंट लाइक जो सिचुएशन है, जो कोरोना की सिचुएशन है, ऐसे इट इज नोन, इट इज अ पॉजिटिव थिंग टू से कि कभी ना कभी ये फेज डेफिनेटली मूव आउट होगा। इट इज नोन एंड इट विल हैपन, ये मुझे पॉजिटिवली ऐसा फील होता है। तो अगर मैं आपसे ऐसा कहूँ कि आप मुझे क्विकली 1 मिनट में और सो एक डेमो दे दो कि इस सिचुएशन को माइंड में रख के आप क्या ड्रॉ कर सकते हो, एनीथिंग दैट यू वांट टू ड्रॉ।
So I think now we can move on to the final section of our podcast, जो कि हमारे जनरल पब्लिक के लिए है. So one of the question like जो आया है वो ऐसा है कि like अभी मेरे जैसे we are like a general regular public. अभी हमें आर्टवर्क पसंद तो है, हम आर्टवर्क खरीदना भी चाहते हैं, but then how to check like that particular art piece or an artwork is an excellent piece of art, how to check the authenticity of it, like ऐसी कुछ चीजें जो हमें दिमाग में रखना जरूरी है. You can go through the galleries, you can go directly to the exhibition centers जहाँ पे exhibitions है. अभी काफी सारे, मुंबई में भी काफी सारे ओपन हुए हैं. पुणे में, आप पुणे से है तो पुणे में काफी सारे आर्ट गैलरीज है. वहाँ पे गैलरी देते वक्त आर्टिस्ट, अच्छे जो गैलरीज है वहाँ पे तो आर्टिस्ट को देते वक्त ही वो फॉर्म भरते वक्त ही सिग्नेचर लेते हैं कि ऑल दीज वर्क्स विल बी क्रिएटेड बाय माई सेल्फ. सो वो एक है. एंड व्हेन यू मीट द आर्टिस्ट यू कैन आस्क फॉर द बायोडेटा. आपने कहाँ पे शोज किए हैं, मुझे आप दिखा सकेंगे क्या, वगैरह ये हो सकता है. इफ यू आर गोइंग थ्रू फेसबुक और इंस्टाग्राम अकाउंट्स में भी काफी सारे हैं, तो यू कैन जस्ट चेक द स्टाइल ऑफ इट, किस स्टाइल से है. वहां से डायरेक्टली पता चल जाता है कि वो आर्टिस्ट किस लेवल का है, या बहुत सा अलग अलग दिख रहा है तो वी कैन अंडरस्टैंड कि हाँ ये जस्ट ट्रायल बेस पे उसने किए हुए हैं, तो उस पे कितना ये रखना है. यू कैन डायरेक्टली आस्क हिम कि आपकी क्रिएटिविटी है क्या. अगर आपको डाउट है तो सो मे बी द ओरिजिनल आर्टिस्ट वोंट लाइक इट कि आपने ऐसे पूछा है. तो बायोडेटास देखने के बाद पता चलता है मेजॉरिटी. यू कैन गूगल दैट आर्टिस्ट वर्क्स आल्सो. मोस्ट ऑफ द आर्टिस्ट आर पुटिंग देयर वर्क्स ऑनलाइन. They are on Facebook, they are on Instagram, and galleries also have authentication certificates also you can get from the artist, the original artist. अच्छा भावना, अभी जैसे कि अभी हमने आर्टवर्क खरीद लिया, सो अभी उस आर्टवर्क को प्रिजर्व करने के लिए या स्टोर करने के लिए किसी चीज का ध्यान रखना होगा ताकि वो लंबे समय तक अच्छे से रहे. आर्टवर्क्स नॉर्मली पेपर, कैनवस पे होते हैं, तो और स्कल्पचर्स भी जैसे होते हैं अलग अलग मीडियम्स में. तो ये स्टोर करते वक्त वहाँ पे ह्यूमिडिटी नहीं हो ये ध्यान देना पड़ता है. पानी नहीं आए डायरेक्टली, इनडायरेक्टली नहीं आए. मॉनसून में थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है. जैसे अगर वाटर कलर है, वाटर कलर पे नॉर्मली ग्लास का कवर हो जाता है, ग्लास से उसको पैक फ्रेम किया जाता है, तो उस पे बैक साइड से प्लाई हो या हार्डबोर्ड हो, तो वहां पे आपको थोड़ा सा एक प्लास्टिक शीट से आपको वो कवर करना पड़ेगा, मतलब अंदर ह्यूमिडिटी नहीं जाए. थोड़े से पानी के इससे भी फर्क पड़ता है कलर्स को. और आर्ट पीस सिलेक्ट करते वक्त भी किस टाइप का क्वालिटी का पेपर है, ये भी कुछ आर्ट कलेक्टर्स ये भी देखते हैं. जैसे ऑयल कलर्स हो तो ऑयल में नॉर्मली मुंबई के एटमॉस्फेयर में या जहाँ पे बीचेस पास है, सी शोर्स है पास में, ऐसे जगह में ये हो जाता है वहाँ पे. और मॉनसून में भी फंगस पकड़ लेता है बैक साइड से, तो वो आपको एंटी फंगल सॉल्यूशंस आते हैं वो लगवा ले सकते हैं. उस पे वो क्लीन करना पड़ता है. वो पानी से तो ज्यादा क्लीन नहीं कर सकते हम ये चीजें, लेकिन कुछ उसमें डस्ट अटक जाती है, वो क्लीन करना पड़ता है, तो ऐसे स्टोर कर सकते हैं उसको. एक्रिलिक कलर्स जो है, एक्रिलिक्स पे नॉर्मली फंगस नहीं होता, लेकिन ऑलरेडी वो कैनवस एक टाइप का क्लॉथ होने की वजह से ज्यादा गर्म या ज्यादा ठंडा इन चीजों से साइड में रखना पड़ता है, या पानी का जो इफेक्ट है उससे साइड में रखना पड़ता है. इन चीजों को दूर रखना पड़ता है. ऑलराइट भावना. सो भावना, ये थे सारे क्वेश्चंस फ्रॉम माय ऑडियंस साइड फॉर यू टू गेट अ पीक इनटू योर वर्ल्ड. सो एज अ फाइनल मैसेज टू माय ऑडियंस, क्या आप कुछ दे सकते हैं? एनी स्पेशल मैसेज? स्पेशल मैसेज इज बी हैप्पी. कुछ ना कुछ क्रिएट करते रहिए, नई चीजें सीखिए, और जिंदगी में
अपना जो अपनी सोच है वो सबसे ज्यादा इसकी तरफ हो के खुश कैसे रहना है, हमें खुशी किससे मिलती है। तो पैसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है नहीं लाइफ में, हेल्थ इम्पोर्टेंट है, घूमना इम्पोर्टेंट है, नई नई चीजें देखिए, नए नए जगह देखिए, नए नए अच्छे खाना खाइए, अच्छा अच्छा नए डिशेस ट्राई कीजिए, नई क्रिएटिविटी कीजिए। फ्री टाइम में हमेशा कुछ ना कुछ जो अपने पास है उसी से कुछ ना कुछ क्रिएट करते रहिए, बहुत खुशी मिलती है इसमें। बच्चों को हमेशा बच्चों को भी पहले से बच्चों को यही सिखाइए कि दिल की सुनिए। एब्सोल्युटली राइट भावना। इनफैक्ट वो कहते हैं ना कि लाइक लिव अ लाइफ ऑफ ग्रेटिट्यूड, जहाँ पर मतलब एवरीडे मॉर्निंग में आप उठकर या सोने से पहले rather than थिंकिंग कि ये सारी चीजें ठीक नहीं हुई, थिंक अबाउट कितनी सारी चीजें हमारी लाइफ में ऐसी है जो शायद बहुतों की लाइफ में नहीं है। बेसिक चीजें हो सकती है, रोटी कपड़ा मकान, और मे बी इवन अ चाइल्ड। लाइक ये चीजें ऐसी है जो लाइफ में है तो आपकी लाइफ एक तरीके से कंप्लीट ही है। सो इट्स अ पर्सपेक्टिव ऑफ लाइफ, एक ऐसी चीज जो हमें स्पेशली जो कोरोना की सिचुएशन में आगे जाते रहने के लिए बहुत प्रोत्साहन करता है। So yeah, very rightly said Bhavna. And I in fact Bhavna, I am really thankful for your willingness to share your story with my world of audience on my podcast. I am deeply honored to have known you as a person, and to like as आप मेरे as podcast पे as a special guest है. So thank you so much for it. And to me, you have really added value. You have brought in your lessons with the goal of sharing your learnings with my world, with entire world. And I think यही वो एक चीज है जो आपको actually unique बताता है. So as a gratitude, as a thank you for your time and energy today, I actually want to gift you something. So मैंने आपके लिए कुछ छोटी सी चीज ऐसी कुछ कस्टमाइज की है, क्यूरेट की है. These are some artisanals. They are like really exotic and flavorsome, along with some goodies. So I'll be sharing soon them with you. I hope you like it. And I'm always reachable. Do feel free to reach out to me anytime. My personal mobile number. आप मुझे कभी भी reach out कर सकते हैं. And finally, I hope that you will be an advocate of my unique podcast and my colorful YouTube channel to your family, friends, and contact. I would humbly appreciate if you would also share your excitement across your social media and digital platforms. So thank you once again, Bhavna, for your time today. Okay, मुझे भी thanks बोलना है आपको. Thanks a lot for selecting me for this session. I just love to share my views for your audience, and thanks a lot. We reach many people, lot more people. I'm sure कि audience is like going to love this podcast, क्योंकि उनको आपकी जो lifestyle है, आपकी क्या thinking है, आपके क्या views है, आप कैसी चीजों को create करते हो, career guidance हो गया, anything like I'm 100% sure कि बहुत सारी चीजें आज के इस पॉडकास्ट में हुए हैं, ये काइंड ऑफ लाइफ लेसन्स है. दिस इज गोइंग टू बी रियली वेरी वैल्यू एडिंग टू ईच एंड एवरी व्यूअर एंड ऑडियंस ऑफ दिस पॉडकास्ट. सो आई होप दैट यू एंड योर फैमिली स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड ऑलवेज. सेम टू यू. स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी, स्टे सेफ, and all the best for your future podcasts also. All the best. Yeah, thanks Bhavna. And to all my viewers and audience watching us right now, thanks for your time as well कि आपने ये सब देखा. Do let me know by hitting like, share and comment. And definitely आप एक थोड़ी सी एक थोड़ा सा efforts लीजिए to subscribe to my channel, क्योंकि जब मैं अपने YouTube analytics देखती हूँ, I can actually see that there are many people who are watching my videos but are not subscribing to my channel. So don't do that, guys. Go ahead, show your love and your support, and stay tuned for more interesting podcast जो कि हमेशा value adding रहेंगे. जैसे कि आज भावना ने बहुत सारी हमें बातें ऐसी बताई जो कि हमारी लाइफ को एक बहुत ही पॉजिटिव पर्सपेक्टिव देती है. So do continue watching us. Stay tuned and take care. Thank you. Bye bye. See you. Yeah, take care, Bhavna. Stay safe. See you. Bye-bye. Bye bye.